numericals today so that we can arrange for the test date. These numericals are from your chapter of hardware, which consists of numericals on raster system. और इनमें से न्यूमेरिकल्स हमेशा आते ही आते हैं. आपका जो फर्स्ट वाला टॉपिक होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 2 to 3 मार्क का न्यूमेरिकल आना ही है इसमें. एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर इन अ वे 18 के करीब न्यूमेरिकल होंगे. उसी में से आता है, कोई नया न्यूमेरिकल नहीं आता. जस्ट द पॉइंट इज कि वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं. माई स्क्रीन इज विजिबल. अनिल, अनिल, माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. So the topic is numericals on raster graphics. देखो कुछ terms हैं which you should know before you start with these numericals. First term is pixel. Pixel होता है a screen point और इसकी unit होती है pixels. Then you have next term resolution. Resolution होता है number of pixels in a frame. Frame का मतलब है in a screen. Screen का मतलब है number of pixels in all the rows multiplied by number of pixels in all the columns. ठीक है. तो that means यहाँ पे unit जो है that will be x into y pixels. That is, you can also say that it is equal to horizontal scan lines into vertical scan line. एक रो को हम बोलते हैं स्कैन लाइन. अब स्कैन लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है. व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल द हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस विद द वर्टिकल स्कैन लाइंस, you what you get is resolution. Then another term here is aspect ratio. Aspect ratio होता है the ratio of width upon height. Width upon height, where the unit is in inches. It means that the number of pixels in each row, which is equal to number of pixels in each column. Aspect ratio हमारा generally 3:4 होता है. एस्पेक्ट रेशियो जनरल टेलीविजन्स का, एलईडीज का 3:4 होता है. मतलब 3 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स इज इक्वल टू 4 वर्टिकल पिक्सल्स. अगर एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाता है, then in that case you see that your image is either enlarged with respect to height, or it has been compressed, or it has been stretched with respect to width. So the shape of the object gets changed. Then next is refresh. अरविंद यहाँ तक क्लियर है बेटा? अरविंद यहाँ तक क्लियर है Yes, बच्चे? ma'am. Then next is refresh rate. Refresh rate होता है number of frames in a second. That its unit is frames per second, or it is also called as hertz. ये refresh rate क्या है? This is number of frames which are traveled by your electron beam in a second. दोबारा से मैं बता रही हूँ कि हम जो भी इमेज को डिस्प्ले करते हैं, हमारी चाहे टेलीविजन की स्क्रीन हो, एलईडी हो, एलसीडी हो, सब में आपके पास सीआरटी है, जिसमें आपका फॉस्फर जो है उस एलिमेंट को एक्साइट किया जाता है. When it comes into a higher energy state, then it emits some light. That light is being shown as a picture to you on the screen. But whenever an electron moves to a higher energy state, after a finite time it moves back to its lower energy state. So before your image gets away from your eyes, it has to be refreshed again. That means that electron beam should be given energy again, so that it is still in the higher energy state. That is called as refreshing. And that refreshing is done at a particular rate so that no flickering is being shown to the end user. Rate means how many times the frame has to be read in a second. In 1 second, how many times this entire screen has to be swept, right? This is generally equal to 30 hertz to 60 hertz. Higher the refresh rate, better will be the picture quality. Then next is your refresh
buffer, or it is also called as frame buffer. This is your memory area, which is memory is always in the units of bits or bytes. Then this we have already discussed why this memory area is called as a frame buffer or why it is called as a refresh buffer. Practical में viva में this is a favorite question कि why the buffer or the memory area is called as frame buffer or why it is called as a refresh buffer. Then last is which you need to know that area of a pixel. Pixel is generally considered to have a circular geometry. So in that case, area of the pixel will be pi r square. ठीक है, यहाँ तक सही क्लियर है? सही यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Now moving on to first question. Consider a screen 1024 into 512 pixel resolution. If the refresh rate is 60 frames per second, how much time would be taken to display one row of pixels? दोबारा आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक लैपटॉप की स्क्रीन है. आपकी लैपटॉप की स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है दैट इज 1024 इंटू 512. This means that the number of rows on your laptop screen is 1024 and the number of uh, columns on the screen is 512. ठीक है? At the intersection of each row and column is your pixels intensity. Now, it says that if the refresh rate is 60 frames per second, मतलब कि अगर 1 सेकेंड में आपकी लैपटॉप की स्क्रीन को 60 टाइम्स पढ़ा जा रहा है, how much time would be taken to display one row of pixels? तो एक रो को पढ़ने के लिए सीपीयू को कितना टाइम लगता है? अब how do we go about this? See, there are 60 frames which are covered in 1 second. So that means one frame will take 1 by 60 seconds. In one frame, how many pixels are there? One frame is one screen. In one frame, the number of pixels are 1024 into 512. That means 1024 into 512 pixels will take 0.167 seconds. So that means one pixel kitna lega? 0.167 divided by the total resolution. That comes out to be zero point 0.3 nanoseconds. And now the question is one row contains 1024 pixels. तो एक पिक्सल को पढ़ने के लिए 0.3 नैनो सेकेंड लग रहा है. तो 1024 पिक्सल्स को रीड करने के लिए आपके पास 1024 इंटू 31 इंटू 0.3117 नैनो सेकेंड्स लग जाएगा. इज दैट क्लियर? हाँ जी ललित. Yes, ma'am. प्रतिका क्लियर है बेटा? Yes, प्रतिका ma'am. Yes, अब ma'am. एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन होता है उसमें आता है और ये क्वेश्चन आएगा आइदर 2 और 3 मार्क्स का. व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज ग्राफिक्स में और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं तो आप इसमें जो ये सॉल्व करने का है ना प्रोसेस इसको आप छोड़ सकते हैं. यू कैन सिंपली राइट इट something numerator upon denominator and don't solve it, but please specify the unit in the end. Nobody will subtract your marks if you will leave your answer here 1024 into 0.317 nanoseconds. But अगर आप ये आगे unit नहीं लिखते हैं then it will be we will be deducting half a mark or 1 mark. ठीक है? Here in graphics we are not judging your multiplication and division skills. What we need to know is that you have put appropriate values in your numerator and denominator. ठीक है? तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम आप लोग ना वेस्ट करें. Now moving on to next question. Let the resolution of the screen be 1024 into 512.
So that means total number of pixels in this will be 1024 into 512, where number of rows are 1024, number of columns are 512. The dimensions of the screen are 12 inches wide and 9.5 inches high. 12 इंचेस वाइड मतलब विथ जो है वो 12 इंच है और ये जो आपका हाइट है दैट इज 9.5 इंचेस. फाइंड द रेडियस ऑफ ईच पिक्सल. कैन समबडी गिव मी एन आइडिया इसको कैसे कर सकते हैं? भूमि कुछ बता सकते हो बेटा? भूमि यस मैम. हाँ कुछ बता सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व? थोड़ा बहुत आइडिया. मैम स्क्रीन का एरिया निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हमारे आ जाएंगे. नंबर तो ऑफ पिक्सेल्स तो हमें मालूम ही है पूरी स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ और पिक्सेल्स स्क्रीन आर. का और स्क्रीन मैम स्क्रीन का एरिया निकाल सकते हैं अगर स्क्रीन रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके. चलिए हम देखिए. रेडियस निकालने के लिए तो एरिया चाहिए. चलिए देखिए. देखो एरिया ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन हमेशा हमारी रेक्टेंगुलर होती है भूमि. ठीक है. तो हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ दे रखा है. लेंथ दे रखा है 12 और ब्रेथ दे रखा है 9.5. तो 12 इंटू 9.5 किया तो एरिया ऑफ द स्क्रीन आ गया जो आप बोल रहे थे. अब इस एरिया ऑफ द स्क्रीन में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो आपको पहली लाइन में दे रखा है 1024 इंटू 512. दस एरिया एक पिक्सल का कितना हो जाएगा? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स. ठीक है. एंड that area, that total area of the screen is this area of each pixel. एक पिक्सल सर्कल है तो उस पिक्सल का जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 into 9.5 divided by 1024 into 512. So by solving this equation you will come to know that r is equals to under root of this quantity. Is that okay? सिर्फ इसको रीअरेंज करके यहीं पे छोड़ दिया है. क्लियर है भूमि? समझ में आ गया? यस. यस मैम. ठीक है. मैम तो एक हमने मिनट क्या दोबारा बता दीजिएगा जरा. हाँ एरिया मैं ऑफ बता. ईच एरिया पिक्सल निकाल ले उसके बाद. देखो हमने पहले पूरी स्क्रीन का एरिया निकाल लिया पहली लाइन में. ठीक है. लेंथ इनटू ब्रेथ करके. उसके बाद हमने कहा कि इस पूरी स्क्रीन पे कितने टोटल पिक्सल्स हैं. तो वो टोटल पिक्सल्स हमारे पता चलते हैं रेजोल्यूशन से. ठीक है. नहीं भी दिया है तो अलग से अगर दिया है कि नंबर ऑफ रोज इतनी है नंबर ऑफ कॉलम्स इतना है, तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो हमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल बताएगा. अब जब हमें मालूम है कि इस पूरे एरिया में इतने पिक्सल्स हैं तो एक पिक्सल का अगर एरिया निकालना है तो आपको टोटल एरिया को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से. तो वही किया है. एरिया ऑफ द स्क्रीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स विल गिव यू एरिया ऑफ ईच पिक्सल. क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हर पिक्सल में एरिया सबका इक्वल है. अगर एक पिक्सल का एरिया A1 है तो दूसरे पिक्सल का भी एरिया A1 ही रहेगा. ठीक है. उसके बाद ये जो अब हमने निकाला है एरिया ऑफ ईच पिक्सल. एक पिक्सल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. तो अब हम यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी. आर को वही छोड़ दीजिए. पाई को यहाँ ले आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. आर स्क्वायर है स्क्वायर को हटाएंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा. ठीक है जी. यस मैम. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Consider two different raster systems with resolutions this and this. तो दो रास्टर सिस्टम है मतलब दो लैपटॉप की स्क्रीन हैं आपके पास. एक का रेजोल्यूशन है 640 इंटू 480 और दूसरे का रेजोल्यूशन है हायर रेजोल्यूशन है उससे 1280 इंटू 1024. व्हाट साइज फ्रेम बफर ब्रैकेट में लिखा है इन बाइट्स. इन बाइट्स का मतलब है जो भी आंसर आएगा आपने उसको डिवाइड बाय 8 करना है. व्हाट साइज फ्रेम बफर इन बाइट्स इज नीडेड फॉर ईच ऑफ दीज सिस्टम्स टू स्टोर 12 बिट्स पर पिक्सल. ठीक है.
It says what size frame buffer is needed. Frame buffer का क्या size होना चाहिए for each of these systems to store 12 bits per pixel. अब देखो क्या कर रहे हैं हम. पहले आप ये चीज समझो कि हमारे पास स्क्रीन पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है. हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक पिक्सल है. पिक्सल होता है पिक्चर एलिमेंट. पिक्चर एलिमेंट का मतलब है कि वहां पर आपके पास कलर की इंटेंसिटी है स्टोर्ड. दैट इज, या तो वहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे बैकग्राउंड कलर है, और अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का कलर है, कलर की इंटेंसिटी है. मान लो अगर आपके पास सिस्टम में दो कलर्स ही हैं, एक कलर है व्हाइट और एक कलर है ब्लैक, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे. ज्ञानेश, एम आई ऑडिबल? ज्ञानेश, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो अगर आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम है, तो ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम में दो कलर्स हैं. एक आपके पास है व्हाइट, जिसको मान लो आपने 0 बिट से दिखाया, और एक आपके पास है ब्लैक जिसको आपने 1 बिट से दिखाया. तो 0 और 1 दो बिट्स के साथ आपके पास चार कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1, where 0 0 is total white, 1 1 is total black, and 1 0 and 0 1 are टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे. एक लाइट ग्रे है, एक डार्क ग्रे है. ठीक है. तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये हो गई कि दो कलर्स के साथ हमारे पास, 2 बिट्स के साथ, 2 बिट्स के साथ हमारे पास चार डिफरेंट कलर्स स्क्रीन पे दिखाई देते हैं. दैट मीन्स कि हम एक पिक्सल की जो इंटेंसिटी है, अगर वो लाइट ग्रे है तो हम उसमें 0 1 सेव कर रहे हैं, और अगर वो डार्क ग्रे है तो हम उसमें 1 0 सेव कर रहे हैं. अगर वो ब्लैक है तो उसमें हम 1 1 सेव कर रहे हैं, और अगर वो वाइट है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर है, तो वहां पे हम 0 0 स्टोर कर रहे हैं. तो हो क्या रहा है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे जो पिक्सल है, वहां पे हम 2 बिट्स को स्टोर कर रहे हैं. यहाँ तक बात समझ में आती है यशी? यशी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर अब ये सिस्टम हमारा ब्लैक एंड व्हाइट ना होके हमारे पास कलर्ड सिस्टम है, कलर्ड सिस्टम में हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स ज्यादा होते हैं. मान लीजिए हमारे पास अगर 12 बिट्स हम एक पिक्सल की जगह पे स्टोर कर सकते हैं, तो 12 बिट्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स आर 2 raised to power 12. राइट? ठीक है. तो ये आपका कलर्ड सिस्टम्स में होता है. जितने भी पिक्सल के बिट्स ज्यादा होते हैं, पिक्सल में जो आप मेमोरी में जगह में बिट्स को स्टोर कर रहे हैं, जितने हायर नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करेंगे, उतना ही आपका नंबर ऑफ कलर्स जो है, पॉसिबिलिटी ऑफ कलर्स इज हायर. ये समझ में आया? 2 raised to power 12. हाँ जी अरविंद, 2 raised to power 12 समझ आया? अश्विन, 2 raised to power 12 समझ आया? देखो, जब हमारे पास सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम था, तो हमारे पास 2 बिट्स से टोटल कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हुए थे? 4. 4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2. ठीक है. तो इन जनरल n बिट्स में, अगर n बिट्स एक पिक्सल पे स्टोर कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स विच आर अलाउड, विच आर पॉसिबल, आर 2 raised to power n. ठीक है. अगर आपके पास एक आरजीबी सिस्टम है, आरजीबी सिस्टम में आपके पास 3 बिट्स हो जाएंगे. ठीक है. तो 3 बिट से आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं? बिट से 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 8. 8 बना लिए ना. तो 8 कैसे आया? 2 raised to power 3. तो यही बोला कि अगर n बिट्स हैं पिक्सल में सेव करने की जगह हमारे पास
एक पिक्सल में हम n बिट्स को सेव कर सकते हैं, तो इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स हैं 2n। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास जो पिक्सल है वहां पे 12 बिट्स पर पिक्सल सेव कर सकते हैं। जस्ट रीड द लास्ट लाइन दैट ईच ऑफ दीज सिस्टम्स कैन स्टोर 12 बिट्स पर पिक्सल। तो 12 बिट्स पर पिक्सल का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ अलाउड कलर्स आर 2 12। क्लियर? अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल बताया है कॉन्सेप्ट। लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन। इट सेज कि you have two different raster systems with resolution 640 into 480 and 1028 into 1024, right? What size frame buffer in bytes is needed for each of these systems to store 12 bits per pixel? So how we do is that, let us talk about just screen one. टोटल पिक्सल्स हैं आपके पास 640 इंटू 480। ठीक है। ईच पिक्सल रिक्वायर्स 12 बिट्स। तो फ्रेम बफर का साइज कितना हो जाएगा? टोटल आपके पास पिक्सल्स है 640 इंटू 480, एक पिक्सल 12 बिट्स ले रहा है, तो फ्रेम बफर का जो साइज है वो हो जाएगा all the pixels multiplied by 12. And why it is divided by 8? Because it is told that size of the frame buffer has to be given in bytes. तो हमारे पास तो 12 जो है वो bits में दे रखा था. When you are multiplying the number of resolution with the number of bits, you will get the answer in bits. But to get it in the bytes, you have to divide it by 8. This is clear? हाँ जी। अंशिका क्लियर है बेटा? यस अंशिका? मैम। अब बात करते हैं स्क्रीन 2 की। तो स्क्रीन 2 में क्या हो जाएगा? 1280 को इंटू 1024 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से एंड डिवाइड कर देना है 8 से। ये हमें क्या बताएगा? मेमोरी का साइज जिसमें हम अपने फ्रेम बफर को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज नाउ स्क्रीन 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है जी। Now, moving on to next question. What is an image aspect ratio? तो aspect ratio आपको मालूम है width upon height है ना? If an image has a height of 2 inches and an aspect ratio of 1.5 inches, an aspect ratio is 1.5 inch. 5 उसमें तो कोई वो यूनिट नहीं होती। ठीक है। What is its width? तो आपको मालूम है दैट एस्पेक्ट रेशियो इज विथ अपॉन हाइट। एस्पेक्ट रेशियो आपको 1.5 दे रखा है, हाइट दे रखी है 2, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू x बाय 2, सो x विल कम आउट टू बी 3 इंचेस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है नमन? Yes, ma'am. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If a screen has 513 scan lines and an aspect ratio of 3 is to 4, and if each pixel contains 8 bits worth of intensity information, how many bits per second are displayed if 30 frames are displayed per second? I read the question again. एक आपके पास स्क्रीन है जिसमें 513 स्कैन लाइंस है, तो जब नहीं स्पेसिफाई किया हुआ तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस की बात कर रहे हैं। एंड एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 3:4, मतलब विथ अपॉन हाइट है 3:4, and if each pixel contains 8 bits worth of intensity information, 8 bits worth of intensity information, it means that कि एक पिक्सल पे 8 बिट्स आपको स्टोर करनी है। तो that means total number of colors which are possible in this are 2 raised to power 8. The question is, how many bits per second are displayed
1 सेकंड में कितने बिट्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं if 30 frames are displayed per second. That means refresh rate जो है that is 30 frames per second. ठीक है? So now how we will do this? देखो scan lines are horizontal scan lines. So aspect ratio है हमारा width upon height. Aspect ratio दे रखा है 3:4. 513 जो है वो आपको यहाँ पर width दे रखा है. ठीक है? Width upon height, तो 513 is your width. X वहां से निकाला आपने 684. So now the number of pixels, अब जब आपके पास height भी आ गया और width भी आ गया, तो आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो number of pixels horizontal है that are number of rows are 513 and number of columns are 684. So when you multiply both of them you will get your resolution. ठीक है? And therefore the number of bits which are displayed per second is 513 into 684 into 8 into 30. अब ये into 8 into 30 क्यों किया है ये देखो. क्वेश्चन है therefore number of bits which are displayed per second. तो नंबर ऑफ बिट्स एक सेकंड में कितने बिट्स को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हम पूरे एक सेकंड में इस स्क्रीन को तो 30 टाइम्स कर रहे हैं क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि इट इज डिस्प्लेड इफ 30 फ्रेम्स आर डिस्प्लेड पर सेकंड. तो एक सेकंड के अंदर हम इस काम को 30 बार कर रहे हैं, तो लास्ट में तो 30 से मल्टीप्लाई आपको करना ही है. ठीक है? एंड देन इट सेज दैट कि एक बिट में 8 बिट्स ऑलरेडी है, तो आपके पास एक पिक्सल में 8 बिट्स है और ये सारा काम आप 30 टाइम्स कर रहे हैं एक सेकंड में, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 513 into 684 into 8 into 30 and this will be given in bits. और अगर ये पूछा होता, यहाँ पे लिखा है how many bits per second are displayed, अगर यहाँ लिखा होता how many bytes per second are displayed, then you will divide the entire thing by 8. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ Yes, जी. ma'am. हाँ जी. हाँ वो विथ है हमारी. देखो लिखा है. हाँ ये ना I'll just let you know the exact why we are considering it as a, number of rows. Why are we not considering it as height? ठीक है? I will let you know. हाँ नेट पे ही देख के मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि जो अब आजकल सिस्टम्स आते हैं ना इसमें एस्पेक्ट रेशियो इज डिफरेंट एज कंपेयर टू जो पहले हमारे पास नॉन एलसीडी स्क्रीन्स आती थी. ठीक है? आई विल लेट यू नो. ठीक है? सो शैल वी मूव फर्दर? Trishna, shall we move further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, next question is, suppose an RGB raster system is designed using an 8-inch by 10-inch screen with a resolution of 100 pixels per inch in each direction. तो एक आपके पास रास्टर सिस्टम है जिसकी आपके पास 8 इंच बाय 10 इंच डायमेंशन है, तो आपके पास हाइट और विड्थ दे रखा है स्क्रीन का विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 100 पिक्सेल्स पर इंच. तो पर इंच में 100 पिक्सेल्स है इन ईच डायरेक्शन. इन ईच डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. मम्मा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. If we want to store 6 bits per pixel in the frame buffer, how much storage in bytes do we need for the frame buffer? तो अगेन हमसे क्या पूछ रहे हैं? फ्रेम बफर का मतलब मेमोरी का कितना आपको एरिया चाहिए होगा फ्रेम बफर को स्टोर करने के लिए.
और इसको आपको आंसर देना है इन बाइट्स, मतलब लास्ट में यू हैव टू डिवाइड द एंटायर थिंग बाय 8, राइट? सो नाउ लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। स्क्रीन का साइज दे रखा है 8 into 10 इंचेस। टोटल रेजोल्यूशन देखो क्या दे रखी है, टोटल रेजोल्यूशन दे रखी है, I will read the sentence again, with a resolution of 100 pixels per inch in each direction। तो पर इंच, और यहाँ पे आपके पास रोज में कितनी इंच है 8, और कॉलम्स में कितनी इंच है 10। तो कितना हो जाएगा, 1 इंच में 100 पिक्सल्स हैं, तो 8 इंच में कितने पिक्सल्स हो गए, 8 into 100 दैट इज 800। और 1 इंच में आपके पास 100 पिक्सल्स है, तो 10 इंचेस में कितने पिक्सल्स हो गए, 10 100 into 10 दैट इज द रेजोल्यूशन विल बी 100 into 8 into 100 into 10। मतलब सीधी सीधी रेजोल्यूशन ना बता के आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके उन्होंने दे दिया क्वेश्चन को। नाउ दिस इज योर रेजोल्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इफ वी वांट टू स्टोर 6 बिट्स पर पिक्सल, मतलब एक पिक्सल में हम 6 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स आर 2 raised to power 6। तो टोटल स्टोरेज कितनी हो जाएगी, 800 into 1000 into 6, क्योंकि एक पिक्सल में हम 6 बिट स्टोर कर रहे हैं। तो 800 into 1000 into 6, the entire thing divided by 8। Why it is divided by 8? Because your storage has to be given in bytes, right? Is that clear? So this will be your answer. Any problem till here, Yashi? हाँ जी, Yashi? No, ma'am, no problem. Okay, right. So now moving on to next. How long would it take to load a 640 by 480 frame buffer with 12 bits per pixel? Again, I read the question. How long would it take to load a 640 by 480 frame buffer with 12 bits per pixel? तो एक पिक्सल में आप पिक्सल में आप 12 बिट्स को सेव कर सकते हैं। इफ 10 raised to power 5 bits can be transferred per second, तो दैट मीन्स अगर लिखा है 10 raised to power 5 bits पर सेकेंड, तो ये आपको रिफ्रेश रेट दे रखा है। तो एक सेकेंड में आप 10 raised to power 5 बिट्स को पढ़ रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू लोड अ 24 बिट पर pixel frame buffer with a resolution of 1280 by 1024 using the same transfer rate? Let us do this here. रेजोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे 640 into 480, और टोटल स्टोरेज स्पेस दे रखी है पर पिक्सल इज 12 बिट्स। सो टोटल फ्रेम साइज हो जाएगा आपका 640 into 480 into 12 bits, right? And time taken to transfer 10 raised to power 5 bits is 1 second. So in order to transfer 1 bit, एक bit को transfer करने के लिए हमें time लगेगा 1 by 10 raised to power 5। Finally, the time which will be required to transfer the entire frame का साइज था ये इतनी बिट्स, 640 into 480 into 12 बिट्स। तो आपको क्या करना है, 1 raised to power 1 by 10 raised to power 5 को इंटायर थिंग को मल्टीप्लाई कर देना है आपको टोटल नंबर ऑफ बिट्स के साथ। So this will be the total time which will be taken to transfer these many bits, पापा, these many bits. Is that clear? हाँ जी, यहाँ तक Yes, क्लियर ma'am. है अश्विन? So this is what was asked in the question. Question में पूछा क्या था? How long would it take to load the frame buffer? कौन सा frame buffer? जिसमें 640 into 480 frame buffer है with 12 bits per pixel. ठीक है? Is this clear? हाँ जी, अमन क्लियर है यहाँ तक बेटा?
Alok, Yes, is ma'am. it clear? Hmm. So now moving on to the next question. Suppose we have a computer with 32 bits per word. आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें 32 बिट्स पर वर्ड है and a transfer rate of 1 MIP. MIP is 1 million instructions per second. How long would it take to fill the frame buffer of a 300 DPI? DPI is dot per inch laser printer with a page size of 8.5 inches by 11 inches. I will just read the question again. I'll explain the calculation, then we will reread the question again. Let us just एक तो ये चीज याद रखो, MIP होता है 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. इसका मतलब है जो आपके पास CPU है वो एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर कर पा रहा है. ट्रांसफर रेट लिखा है ना कि ट्रांसफर रेट है 1 MIP. तो एक सेकंड के अंदर वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर कर पा रहा है. How long would it take to fill the frame buffer of a 300 DPI? DPI का मतलब है डॉट पर इंचेस. डॉट का मतलब है पिक्सल पर इंच. तो एक इंच में आपके पास 300 है. लेजर प्रिंटर है ये आपका with a page size of 8.5 inches by 11 inches. तो that means ये स्क्रीन का एरिया की बात हो रही है. Now let us first see how we will solve this, then we will move further. देखो सिंपली हमें स्क्रीन साइज दे रखा है 8.5 इंच बाय 11 इंच. 8.5 into 11. देन दिया हुआ है 300 डॉट्स पर इंच. तो दैट मींस 300 पिक्सल्स पर इंच. तो दैट मींस टोटल रेजोल्यूशन कितनी हो जाएगी? एक इंच में 300 पिक्सल्स हैं. टोटल हमारे पास 8.5 इंचेस हैं. तो 8.5 इंटू 300 हो जाएगा रोज का एंड 11 इंटू 300 हो जाएगा इंच का. ये अभी हम पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी सेम चीज करके ही रेजोल्यूशन निकाली है हमने. ठीक है. अब इसके बाद फर्दर टोटल फ्रेम साइज कितना हो जाएगा? हम इसको सिर्फ इन्होंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, अदरवाइज यू विल सिंपली लीव इट लाइक दिस. ठीक है. उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है? For transferring 10 raised to power 6 instructions, 1 second is required. 10 raised to power 6 is 1 million instructions. तो 10 raised to power 6 instructions को ट्रांसफर करने के लिए 1 सेकंड लग रहा है. 32 बिट्स पर वर्ड की एक इंस्ट्रक्शन है. एक इंस्ट्रक्शन का साइज 32 बिट्स है. तो एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए you would require 32 bits. So that means total time would be taken will be 1 by 10 raised to power 6. ठीक है. 10 raised to power 6 इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करने के लिए 1 सेकंड लग रहा है. एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए 1 बाय 10 रेज टू पावर 6. ये जो एक इंस्ट्रक्शन है इसमें 32 बिट्स हैं एक इंस्ट्रक्शन में. तो 32 बिट्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें जो टाइम लग रहा है दैट इज 1 बाय 10 रेज टू पावर 6. अब एक बिट को ट्रांसफर करने के लिए हमारा टाइम लगता है 1 बाय 10 रेज टू पावर 6 इंटू 32. और यही निकालना था हमें एक बिट का ट्रांसफर साइज कितना है. और अब टोटल फ्रेम को हमें ट्रांसफर करने के लिए दैट मींस इस पूरे को ट्रांसफर करने के लिए हमें the entire thing has to be multiplied by 8.4 into 10 raised to power 6 bits. So these many seconds will be required. हाँ जी. Shall I repeat this question? Yamini? Abhinav? Abhinav, do you No, want ma'am. me to No, ma'am. repeat? No, ma'am. तो मैम ठीक है. समझ आ गया था. समझ आ गया. Yes, ma'am. अच्छा ये देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से ही क्वेश्चंस, लेकिन कोई भी एक दूसरे से ना ज्यादा मिलता जुलता नहीं है. एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन
3 या 2 मार्क के लिए आएगा, 4 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। कोई कैलकुलेशंस को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड एंड जो भी सिंपल इंग्लिश में लिखा है, पुट इट इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशंस एंड लीव द रिजल्ट विद द इंटैक्ट यूनिट। आई विल स्पेसिफाई अगेन हियर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider two raster systems with resolution of 640 by 480 and 1280 by 1024. How many pixels could be accessed per second in each of these systems by a display controller that refreshes the screen at a rate of 60 frames per second? What is the access time per pixel in each system? तो दो सिस्टम्स दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे 2 मार्क का बनाना है तो मैं दोनों में से किसी एक सिस्टम को रख लूंगी और उस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी। 640 इंटू 480 रहने दूंगी, 1280 बाय 1024 हटा देंगे, और ये जो स्क्रीन का रेट है, रिफ्रेश रेट है, इसको 60 के बजाय आई माइट डू 40 और आई माइट डू 35। दैट इज द ओनली थिंग विच आई विल चेंज व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, देखो रेजोल्यूशन दे रखी है 640 इंटू 480, टोटल पिक्सल्स इसका मतलब हो गए हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स विच आर एक्सेस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हम कितने पिक्सल्स को एक्सेस कर रहे हैं, एक पूरे फ्रेम को 60 बार, तो पूरा एक फ्रेम दैट इज 307200 इंटू 60। ठीक है, इतने हम पिक्सल्स को 1 सेकेंड में देख एक्सेस कर रहे हैं। Now for per pixel access time, we have been given a refresh rate of 60 hertz और 60 frames per second। तो एक फ्रेम को क्या टाइम हो जाएगा 1/60, तो एक पिक्सल का टाइम हो जाएगा आपके पास 1/60 इंटू टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट इज 640 इंटू 480। क्लियर है यहाँ तक बेटा? चिराग क्लियर है? हाँ जी Yes, चिराग। ma'am. और इसी तरह से आपने नीचे दूसरी वाली रेजोल्यूशन के लिए इसको सॉल्व किया है। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? क्वेश्चन नंबर 2.8 तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी साई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बेटा? यस ज्ञानेश जी, ज्ञानेश बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ज्ञानेश आर यू देयर? कुणाल, ललित, Yes, ma'am. ये यस किसने बोला, ललित ने? Ma'am, Lalit. बाकियों का क्या करें, ज्ञानेश और कुणाल का? वो है या माइक ऑफ करके इधर उधर, या फिर एक वही चीज की बस नेटवर्क का इशू हो रहा है इस वक्त? अच्छा ठीक है, चलिए आई थिंक दिस इज दीज न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ फोले। आप चैप्टर 2 फोले खोलेंगे, पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बीच में कवर कर लिए हैं। अभी वी स्टिल हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड व्हिच वी विल डू इन टुमारोज क्लास। ठीक है, तो अभी मैंने 2.8 तक किया है ना, यहाँ तक किया है। अच्छा दो ही क्वेश्चन और हैं, दो ही क्वेश्चन और है, लेट अस जस्ट कंप्लीट दिस। दो ही क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ वीडियो मॉनिटर विद अ डिस्प्ले एरिया दैट मेजर्स 12 inches across and 9.6 inches high। तो हाइट और विड्थ दे रखी है। इफ द रेजोल्यूशन इज 1280 बाय 1024 एंड द एस्पेक्ट रेशियो इज 1:1, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ ईच स्क्रीन पॉइंट? ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, डायामीटर पूछा है, रेडियस आप निकाल चुके हो। यू नो दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई रेडियस बाय 2 यू विल गेट द डायामीटर, है ना?
तो रेजोल्यूशन 1028 इंटू 1024 है, एस्पेक्ट रेशियो 1:1 है, हाइट आपके पास, विथ आपके पास 12 है एंड हाइट आपके पास 9.6 है। गलत लिखा हुआ है ये, 9.6 इंचेस है, ठीक है, ये 9 लिखा है, गलत है। तो डायामीटर आपका पिक्सल का हो जाएगा 12 बाय 1280। देन next is how much time is spent scanning across each row of the pixel during r- screen refresh on a raster system with a resolution of 1280 by 1024 and a refresh rate of 60 frames per second. तो अगेन आपके पास रेजोल्यूशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, रिफ्रेश रेट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड है, तो एक फ्रेम को स्कैन करने के लिए 1/60 टाइम लगेगा आपके पास। टोटल नंबर एक सेकंड के अंदर आप n इंटू टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटू द फ्रेम्स पर सेकंड को स्कैन कर रहे हैं, वेयर n इज द टाइम विच इज टेकन फॉर स्कैनिंग वन लाइन। तो आपके पास यहाँ से n जो आ जाएगा, सारी वैल्यूज दे रखी है, सो n विल बी योर हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। अभी ये जो क्वेश्चन है, हैव वी डिस्कस्ड अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रीट्रेस? क्या हमने करा है इसको अभी? रीट्रेसिंग कराया था मैंने आपको। हैव वी डन द वर्किंग ऑफ अ वीडियो कंट्रोलर? नहीं किया ना? No, ma'am. हाँ, तो ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ दीजिए, बट जब हम वीडियो कंट्रोलर करेंगे देन यू विल जस्ट रिमाइंड मी दैट वी हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द टाइम टेकन फॉर हॉरिजॉन्टल रीट्रेस एंड फॉर वर्टिकल रीट्रेस। ये हम तभी आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू। ठीक है, आई विल शेयर दिस स्लाइड विद यू। जस्ट 2.9 हमें लास्ट में दोबारा 2.9 और 10 को दोबारा से जब हम वीडियो कंट्रोलर की बात कर लेंगे, उसकी फंक्शनिंग की बात कर लेंगे, तब इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, अब हमारी कल है क्लास 10:45। Yes, ma'am. तो मिलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या सोचा है? अब तो मंडे ट्यूसडे में सारे प्रैक्टिकल्स आ गए हैं, तो व्हाट हैव यू थॉट अबाउट कमिंग टू कॉलेज? अनिल, अनिल, Yes, ma'am. हाँ, क्या क्या चाहते हो आप लोग भाई? थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ अप तो करो ना कि कॉलेज आना चाह रहे हो, नहीं आना चाह रहे हो, क्या सिस्टम है? आई थिंक अपनी बात कह देने में कोई बुराई तो नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। पता चले ना आपका कंफर्ट किस में है, उसी तरह से अकॉर्डिंगली वी शुड आल्सो मूव अहेड। बोलो क्या चाहते हो? मैम मैं तो अभी नहीं आया। अच्छा, अच्छा, बाकी लोग बताएं मुझे प्लीज। हाँ जी, ललित, बोलो चिराग। मैम इस वीक तो नहीं आने का मैं, पर नेक्स्ट वीक आ सकता हूँ। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ओके ठीक है। हाँ, ललित बेटा बताओ आपका क्या है? यस मैम, एंड फरवरी वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा, दिल्ली में आ जाऊंगा मैं, मतलब। अच्छा ठीक है, तो मतलब नटशेल ये है कि आप लोग अभी एक हफ्ता और सिचुएशन एनालाइज करना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक यामिनी बोल रही थी कॉलेज आने के लिए, है ना यामिनी? आई थिंक यू आस्क्ड मी। Yes, यामिनी आपने, ma'am. Yes, तो ma'am. यामिनी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक या दो स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज आऊँ, है ना? तो फिर Yes, आके भी ma'am. क्या You करना है will कि मेरे को understand. क्लास में ही, हाँ है ना? फिर मुझे वहां मैम, आके भी ऑनलाइन मोड में ही करना है ना, क्योंकि बाकी लोगों को तो ऑनलाइन मोड में रिकॉर्डिंग तो चाहिए ना, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक हफ्ता रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट दिस कमिंग टू कॉलेज, मे बी प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के एंड में एक बार बात कर लेंगे, करेंगे वही जो आपको ठीक लगे। और अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाएगा, तो उसको तो हम नहीं नलीफाई कर पाएंगे। बाकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से ही चीज हो। हाँ, ज्ञानेश बोलो बेटा। ज्ञानेश वही आपको बोला सही था बताए। मैम,
यस मैम, वही बोला था कि मैम अगर ऑफलाइन क्लासेस मतलब कोई लैब जाने लगेगा तो ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेंगी ना मैम, हाँ, प्रैक्टिकल्स का। ऑनलाइन तो चलेंगी क्योंकि वो ज़रूरी भी है, हमसे कहा भी गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो नॉन डेलीइट्स हैं वो 2 दिन के लिए नहीं आ पा रहे हैं ना। यस मैम, वही दिक्कत है। हाँ, मैं आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। और ओके मैम। मेरे हिसाब से ग्राफिक्स का यार तुम लोग प्रैक्टिकल्स सबमिट टाइमली कर दो, सो दैट आई हैव समथिंग टू शो कि बच्चे प्रैक्टिकल तो कर ही रहे हैं। ओके मैम। सो देयर विल बी नो, मतलब ज्यादा फोर्सिंग नहीं हो पाएंगे ना कि आपको बुलाना ही बुलाना है हमें कॉलेज में, है ना? ठीक है। सो ओके मैम। हम इस बारे में अगले वीक के एंड में बात कर लेंगे, और अब हम कल मिलते हैं। टुमारो आई विल कवर अप द लास्ट एल्गोरिथम डेप्थ सॉर्ट वाला, और आज आप लोगों ने अपना प्रैक्टिकल सबमिट करना है ग्रुप वाइज, ठीक है जी? यस मैम। कर देंगे ना? आज कर पाएंगे कंफर्टेबली? शाम तक हो जाए। क्या आपको एक आध दिन और चाहिए? दे दीजिए मैम। यस मैम। तो ठीक है, आज क्या है? आज वेडनेसडे है, तो फ्राइडे यस मैम। फ्राइडे तक सबमिट करेंगे थैंक यू मैम। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो फ्राइडे तक आप लोग अपना सबमिट कर दीजिए, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन एज पर द ग्रुप्स। और आप लोगों ने ना अपना पिछला वाला स्कैन कन्वर्जन और क्लिपिंग वाला सबमिट ही नहीं किया है ना? चलो उसकी भी डेट डिसाइड कर लेंगे। अब आप वो पढ़ना एक शुरू कर दो। बोलो बोलो अभिनव। इक्लिप्स वाला था ना वो। हाँ जी, एलिप्स हाँ एलिप्स, मैम। हाँ। हाँ इक्लिप्स वाला, हाँ मैम वो भी कर हाँ, देंगे। आई थिंक हाँ, उसकी सारी बनानी रह रही है आई थिंक। चलिए कर वो प्रोग्राम तो लीजिए। मैम हो गए हैं वो। Basically, Friday तक I am looking forward to questions related to transformation and projections, and बाकी आप कर लो, ठीक है? ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय। मैंने अच्छा यार, हाँ ये पता है, ये सब ज्यादा इसको क्या है, इसको आने का बहुत मन है, लेकिन ये अकेले नहीं आ सकती है, तो ये चाहती है इसके साथ 8-10 लोग और कॉलेज है कौन है है? ना? यामिनी, यामिनी तेरा मन है जाने का? अबे मैं उसका तो तो पूरा मेरी मन है मन स्टार्टिंग से, मैं तो मन पर देखूंगी प्रॉब्लम ये है कि वो शुक्र। अकेले नहीं जा सकती। इन द सेंस अकेले जाके कॉलेज में करेगी क्या? तो चाहती है कि उसके 8-10 बच्चे कॉलेज आए, फिर ये भी आए। नहीं नहीं, देख मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए आओ, चाहती कि तुम्हारा भी मन हो आने का, और तुम नहीं आओगे तो कान मैं तुम्हें इधर से फोर्स घुमा के नहीं पकड़ो, करूंगी। कान इधर से पकड़ो या उधर से घुमा के पकड़ो, बात एक ही है यहाँ भी, ठीक है? अब यार मर्जी है, तूने अभी हम तूने खुद बोला था ठीक है कि तेरा मन है तू चले जा, तो मैं गई, तो ठीक है? मैंने थोड़ी अब तू रोका है। मत मैंने मत ले पोस्टर हरिदा वोस्टर। मैम बीच में उसमें क्वेश्चन लगती है, अरे आऊंगा मैं, एक मंडे को तो आऊंगा। ओ भाई बता देना, हैं? बता देना फिर वो कौन सा मंडे होगा। ये देखने वाली बात है, देखने वाली बात तो यही है। अरे एक्चुअली एक दिन काम है यार, आना है मेरे को कॉलेज। अब काम क्या, वो प्रोजेक्ट याद नहीं है? हाँ, अब तो काम होगा ही। अभी कोई ग्रुप खाली है क्या? मैं कह रहा हूँ ग्रुप उसका छोड़, कोई ग्रुप है, टॉपिक है विवेक क्या विवेक खाली? विभू वाला ग्रुप देख, 4 बंदे हैं उनमें, घुस जा। उसमें यश। विवेक विभू तृष्णा याशी वाला है शायद से, उसमें चली जा। तो कितने हो सकते हैं? 5। है तो 5 मुझे, वो मुझे लेंगे अपने ग्रुप में? अब ऐसे मतलब क्या रिश्वत दे दियो यार, और क्या कहूँ। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ। तृष्णा याशी से कहते मैं कॉलेज में पॉपुलैरिटी दिलवा दूंगी। अभी नहीं यार, यशी तो दोस्त है मेरे, हमारे सेम दिन